کہانی ایک ایسے معصوم 10 سال کے بچے کی ہے جس نے بھوک سے تنگ آ کر ایک روٹی چرائی تھی، اور ظالم لوگوں نے ایک روٹی چرانے پر اس بچے کے ساتھ ایسا ظلم کیا جسے سن کر یقیناً آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان سے بارش اس طرح برس رہی تھی جیسے کوئی اپنے دل کا غبار نکال رہا ہو۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے پورا گاؤں لرز رہا تھا۔ گاؤں کے کچے گھروں کے بیچ ایک بوسیدہ جھوپڑی میں ایک کمزور سی عورت درد سے کراہ رہی تھی۔ یہ زینب تھی جسے چند سال پہلے محبت کی پاداش میں اپنے خاندان سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ نڈھال تھی مگر اس کے چہرے پر ممتا کی روشنی تھی۔ آخرکار بارش کی گرج میں ایک کمزور سی رونے کی آواز ابھری، ایک ننھا سا وجود جو ابھی دنیا میں آیا تھا۔ زینب کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکان ابھری، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ایک بھیگا ہوا شخص اندر داخل ہوا۔ یہ دلاور تھا، اس کا شوہر جو شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ زینب نے کمزور لہجے میں کہا، دلاور دیکھو ہمارا بیٹا۔ مگر دلاور کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جیسے اس کی روح آہستہ آہستہ اس کے جسم کو چھوڑ رہی ہو۔ زینب نے لرزتی آواز میں اسے پکارا، مگر وہ اس پکار کا جواب نہ دے سکا۔ اس کی سانسیں رک چکی تھی، وہ اپنی بیوی اور نوزائیدہ بیٹے کو تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ زینب نے اپنے آنسو پونچھے اور صبر کی چادر اوڑھ لی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے خود ہی اپنے بیٹے کو پالنا ہوگا۔ گاؤں میں اس کا کوئی سہارا نہ تھا کیونکہ دلاور کے خاندان نے اسے پہلے ہی ٹکرا دیا تھا۔ دلاور کی بے شمار زمینیں تھیں مگر اس کے بھائیوں نے زینب کو گھر سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں زینب اپنی گود میں ننھے یوسف کو لے کر بیٹھی تھی۔ اس کا شوہر دلاور دنیا سے جا چکا تھا اور اب اس کے پاس بس یہی بچہ تھا۔ باہر بارش برس رہی تھی جیسے آسمان بھی اس کے حال پر رو رہا ہو، مگر زینب نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اب اسے خود ہی اپنے بیٹے کے لیے جینا تھا، اسے پالنا تھا اور اس کے لیے ایک اچھی زندگی بنانی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، اس کی انگلیوں نے وہی کام دوبارہ شروع کر دیا جو وہ اپنے بچپن میں اپنی ماں سے سیکھا کرتی تھی۔ وہ مٹی کے برتن بنانے لگی۔ اس کا ایک ایک وار اس کے دل کی تکلیف کو کم کر رہا تھا۔ جب برتن تیار ہو گئے تو وہ خود انہیں لے کر گاؤں کی گلیوں میں نکل پڑی، آواز لگاتے ہوئے، مٹی کے برتن لے لو، میرے ہاتھ کے بنے، مضبوط اور خوبصورت۔ کچھ لوگ خرید لیتے، کچھ مذاق اڑاتے، کچھ دھتکار دیتے، مگر وہ صبر سے سب سہتی رہی۔ چند سالوں میں یوسف بڑا ہونے لگا۔ 4 سال کا ہونے پر وہ اپنی ماں کے ساتھ جانے لگا، برتن ہاتھ میں لے کر گلی گلی آواز لگاتا، مٹی کے برتن لے لو، میری اماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اب وہ مدرسے بھی جانے لگا تھا، دن میں پڑھتا، شام کو برتن بیچتا اور رات کو اپنی ماں کی گود میں سو جاتا۔ ان کا کچا گھر چھوٹا ضرور تھا مگر وہاں ماں کی محبت کی روشنی ہمیشہ موجود رہتی۔ زینب اپنی تکلیف بھول کر یوسف کے لیے جیتی تھی۔ ایک دن جب یوسف 4 سال کا تھا، اس کے چاچا رحمت علی ان کے گھر آئے۔ وہ امیر آدمی تھے مگر برسوں سے یوسف اور زینب کو نظر انداز کر رہے تھے۔ آج اچانک وہ زینب سے کہنے لگے، بھابھی آپ ہماری بڑی ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیں، یوسف بھی ہمارا خون ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے۔ زینب حیران رہ گئی، ان لوگوں کو آج اچانک رحم کیسے آ گیا؟ مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ راستے نہیں تھے۔ یوسف کی بہتر زندگی کی امید میں وہ چاچا کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ چاچا کے گھر پہنچ کر زینب نے جلد ہی محسوس کیا کہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں۔ دلاور کی زمینیں اب بھی اس کے نام پر تھیں اور چاچا چاہتے تھے کہ وہ ان پر دستخط کر دے تاکہ سب کچھ ان کے قبضے میں آ جائے، مگر زینب نے انکار کر دیا۔ یہ انکار ظلم کا آغاز تھا۔ زینب کو دن رات کام پر لگایا گیا، کھانے کو سوکھی روٹی دی گئی اور یوسف کو مدرسے جانے کے باوجود نوکروں کی طرح کام پر لگا دیا گیا۔ زینب پر ظلم ہوتا مگر وہ ہر درد خاموشی سے سہتی، صرف اس لیے کہ یوسف پر کوئی آنچ نہ آئے۔ پھر ایک رات جب تیز بارش ہو رہی تھی، زینب شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ وہ ایک تاریک کمرے میں لیٹی تھی جبکہ یوسف دوسرے کمرے میں بچوں کے ساتھ سونے پر مجبور تھا۔ اسی رات چاچا اور چاچی زینب کے پاس آئے، زبردستی اس کے ہاتھ میں قلم تھمایا اور کہا، یہاں سائن کرو۔ زینب نے انکار کیا مگر چاچا کے آدمیوں نے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا اور زبردستی دستخط کروا لی۔ اس کے بعد چاچی نے ایک زہریلا پیالہ زینب کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ چند لمحوں میں اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ وہیں بے جان ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی چاچا نے پورے گاؤں میں افواہ پھیلا دی
कि ज़ैनब बुखार की शिद्दत से चल बसी है। यूसुफ अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रोया, मगर चाचा ने उसके आंसुओं की कोई परवाह न की। कुछ दिन बाद जब वह मदरसे जा रहा था, चाची ने उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मदरसे जाने की जरूरत नहीं, अब तो हमारे खेतों में काम करेगा। अब उसका मामूल बदल गया। वह खेतों में जानवरों का गोबर उठाता, रात को भूखा सोता, और रमजानुल मुबारक में तो सहरी के वक्त भी उसे कुछ न मिलता। इफ्तार पर सबके सामने उसे एक सूखी रोटी थमा दी जाती। एक दिन भूख से तंग आकर वह चोरी छुपे बावर्ची खाने में गया ताकि कुछ खा ले, मगर चाची ने देख लिया। वह चिल्लाई, ये चोर है, इसने मेरे जेवर चुराए हैं। चाचा गुस्से में आया, यूसुफ को पकड़कर बुरी तरह मारा और आखिर में उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। बाहर बारिश हो रही थी, सर्दी शिद्दत इख्तियार कर रही थी और यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद कर रहा था। अम्मा, अगर आप जिंदा होती तो मुझे बचा लेती, लेकिन माँ नहीं थी और कोई उसे बचाने वाला भी नहीं था। वहां बैठे बैठे उसके दिल में एक फैसला उभरा। वह मजीद जुल्म सहने के लिए नहीं बना था। वह उठा, बारिश में भीगते हुए घर से निकला, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। खौफ से कांपता रहा, मगर अब वह पीछे नहीं हटेगा। सुबह होते ही वह रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अब उसके सामने एक नई दुनिया थी और उसे अपनी तकदीर खुद बनानी थी। यूसुफ थका मांदा निढाल कदमों के साथ रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। उसका बदन लरज रहा था, भूख की शिद्दत से उसका सर चकरा रहा था। वह स्टेशन के करीब एक दीवार के साथ जाकर बैठ गया। आसपास चलते लोगों को देखने लगा। रमजान का बाबरकत महीना था, बाजारों में चहल पहल थी। लोग खजूरें, फल और इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। यूसुफ की नजरें एक मासूम बच्चे पर जा टिकी जो अपने वालिद के साथ खड़ा मजे से फ्रूट खा रहा था। उसके पेट में एकदम मरोड़ उठा। वह कई दिनों से भूखा था। उसे लगा कि अगर आज भी कुछ न खाया तो वह शायद जिंदा न रह पाए। हिम्मत करके यूसुफ उठा और करीब ही एक बड़े से होटल के पास जा पहुंचा। वहां खाने की खुशबू उसे मजीद बेताब कर रही थी। वह लरजती आवाज में होटल के मालिक के पास गया और कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उसकी नजरें यूसुफ के फटे पुराने कपड़ों पर जा रुकी। फिर वह गुस्से से दहाड़ा, चल भाग यहाँ से, पैसे हैं तेरे पास, फकीरों के लिए खाना नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मांगने। मालिक की सख्त आवाज और तेज जुबान से यूसुफ का दिल कांप गया। वह पीछे हटा, अपने आंसू साफ किए और वहां से दूर जाने लगा। चंद कदम चलकर उसकी नजर एक साइड पर गिरी हुई रोटी पर पड़ी। मालूम नहीं ये किसकी फेंकी हुई थी, कब की थी, मगर उस वक्त यूसुफ के लिए यही सब कुछ थी। वह हिम्मत करके रोटी की तरफ बढ़ा, उसे उठाया और जल्दी से भागने लगा। मगर उसी लम्हे होटल के मालिक की नजर उस पर पड़ी। वह चिल्लाया, पकड़ो, चोर है, इसने चोरी की है। होटल के मुलाजिम और कुछ लोग यूसुफ के पीछे दौड़ पड़े। उसके कदम लरजने लगे, मगर वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक खौफ था, अगर ये लोग उसे पकड़ लेंगे तो न जाने क्या होगा। भागते भागते वह एक गली में पहुंचा ही था कि एक आदमी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वह जमीन पर मुंह के बल गिर गया। हाथ से रोटी छूटकर दूर जा गिरी। चारों तरफ लोग खड़े थे, सब उसे घूर रहे थे। किसी ने कहा, चोर है, ये तो आदत से मजबूर लगता है, बता तूने क्या चोरी की। यूसुफ का नन्हा सा दिल खौफ और बेबसी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, सिर्फ रोटी उठाई थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। मगर किसी को उसकी भूख नजर न आई, सबको बस उसकी चोरी नजर आई। रोटी वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी, जैसे अपनी बेकदरी पर रो रही हो। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। उनकी आंखों में रहम था, उनके चेहरे पर हमदर्दी थी। वह सब की तरफ देखकर बोले, शर्म करो, ये एक मासूम बच्चा है, भूख से मजबूर होकर इसने एक रोटी उठा ली और तुम लोग इस पर ऐसा जुल्म कर रहे हो। रमजान में अल्लाह के बंदे बनो, दरिंदे नहीं। सब खामोश हो गए। बुजुर्ग ने शफकत से यूसुफ के सर पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, बेटा चलो मेरे साथ। यूसुफ ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा, जैसे वह बरसों बाद किसी मेहरबान चेहरे को देख रहा हो।
बुजुर्ग उसे अपने छोटे से घर ले आए, दरवाजा खोला और अंदर ले जाकर एक चटाई पर बिठाया। फिर चूल्हे पर रोटी गर्म की, दूध का एक प्याला निकाला और यूसुफ के सामने रख दिया। बेटा, आराम से खाओ, फिर मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। यूसुफ की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। आज पहली बार किसी ने उस पर रहम किया था। वह रोटी के निवाले तोड़ने लगा, मगर साथ साथ अपने दिल में छुपे जख्म भी खुलने लगे। बुजुर्ग आदमी जिनका नाम रहमत चाचा था, यूसुफ को अपने बेटे की तरह गले लगा लेते हैं। वह उसे अपने घर में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसे प्यार और मोहब्बत देते हैं। कुछ दिन बाद वह यूसुफ को अपने साथ खेतों में ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा, ये जमीनें अब तुम्हारी हैं। अल्लाह ने मुझे इनसे नवाजा था और आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम मेरे बेटे हो, अब तुम्हें किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिसे सबने दुत्कार दिया, आज अल्लाह ने उसे इज्जत बख्श दी है। दूसरी तरफ यूसुफ के चाचा और उनका पूरा खानदान बुरे वक्त की लपेट में आ चुका था। सबसे पहले उनकी जमीनों में अचानक आग लग गई। खड़ी फसलें जलकर राख हो गई और जो थोड़ी बहुत जमीनें बची थीं, उन पर ऐसी शदीद बारिश आई कि सब कुछ तबाह हो गया। चाचा के कारोबार में भी नुकसानात होने लगे। कंपनी में बेहिसाब कर्जे चढ़ गए और आखिरकार वह दिवालिया हो गए। यूसुफ की चाची, जो कभी उसे हिकारत से देखती थी, आज सड़क पर खड़ी लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुकी थी। चाचा को अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने ज़ैनब और यूसुफ के साथ जो जुल्म किया था, अल्लाह ने उसी का बदला दिया है। वह दर दर यूसुफ को ढूंढने लगे। वह हर जगह उसके बारे में पूछते, मगर यूसुफ उन्हें कहीं नहीं मिला। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमने एक यतीम के साथ बुरा किया, उसकी माँ को सताया, उसका हक छीना, आज हम उसी सजा में मुब्तला हैं। चाचा रोते रहे, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन चाचा यूसुफ को ढूंढते ढूंढते रहमत चाचा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी नजर यूसुफ पर पड़ी। वह हैरान रह गए। यूसुफ अब 12 से 13 साल का हो चुका था। अच्छे कपड़े पहने, एक इज्जतदार और खुशबाश लड़के की तरह खड़ा था। चाचा ने फौरन उसके कदमों में गिरकर कहा, बेटा, हमें माफ कर दो, हम बहुत जालिम थे। अल्लाह ने हमें हमारी सजा दे दी। हमने बहुत बड़ी गलती की। हम तुम्हारी माँ के कातिल हैं, तुम्हारे बचपन के जालिम हैं, मगर अल्लाह की रजा के लिए हमें माफ कर दो। यूसुफ ने उन्हें देखा। उसके दिल में वो सारे जख्म हरे हो गए जो बचपन में उसे दिए गए थे। मगर फिर उसे मदरसे में पढ़ी हुई एक आयत याद आ गई, जो माफ कर दे और सुलह कर ले, उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। उसने आंखों में आंसू ले कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। चाचा हैरान रह गए। जिस यूसुफ को उन्होंने दर दर कर दिया था, आज वही यूसुफ उन्हें माफ कर रहा था। यूसुफ अब रहमत चाचा के साथ खुश था। वह स्कूल भी जाता था, मदरसे में कुरान भी पढ़ता था और खेतों का काम भी सीख रहा था। अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी थी। कहानी का सबक यही था कि यतीमों का हक खाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, और जो माफ कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत अता करता है।